Mr. Kharge in his opening remarks said you should start elections 1 year before. You must, take effective steps in terms of not depend on national leaders or national issues, bring up local issues. And this is all part of something that you all decided in Udaipur, Chintan Shivir. Why? What is stopping the party for the last 2 years? I'm not able to understand that. Nothing stopping. Whatever the whatever things which we have not done so far, we are going to expedite all these decisions. Anyway, Karnataka we fought elections like that only. Telangana we fought elections that only. Himachal also we fought elections that only. Kharge read out the resolution 2018 on EVMs. Now, what is the party stand exactly coming out in this CWC? Are you against EVM? Do you want ballot paper? Because there is no clarity from what is emerged from the CWC. Please read the resolution, you will have the clarity. Yeah, so are you standing with that resolution that you have to go back, to the ballot? But it has not been mentioned in your resolution, today's resolution. Solution is very clear that our So same, it was the same. same. So the CWC has deliberated for over 4.5 hours on the outcome of the poll results, recent poll results. So what has been the crux of it? Because, you either blaming the EVMs, like as you said, that electoral malpractices, or infighting, or lack of unity and all that. What is the exact reason? We clearly emphasize the electoral malpractices had happened during these elections. We are already sent a technical team to Haryana, and technical team we are going to send to Maharashtra also. We will have a detailed analysis on booth level. There are so many complaints are coming in the public domain also. There are so many complaints about the voters list, about the discrepancy of the polling numbers during the time of 5 p.m. and during the time of 10 p.m. This type of lot many things are there. So we will do a thorough analysis. There will be 2 level of analysis will be there. One political, another is technical. We will come with the final call. Then in meanwhile, we already told in the resolution, we will have a national movement. सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी और टफ डिसीजंस की बात की है, तो किस लेवल पर ये डिसीजंस होगा, और क्या ये महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर एक डिसीजंस होगा, अकाउंटेबिलिटी तय होगी? बिल्कुल, यू विल सी द डिसीजंस. After Congress President already told all these things, we will take stock of the situation and take decisions. सर, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई, धांधलियां हुई और ये समझ के परे है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतना आप लोग में गुस्सा है कि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, कि अब आप जनता पे गुस्सा निकाल रहे हैं और देश के हितों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल खड़े कर। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं, और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या तब वो गुस्से में बोलते थे. तो बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको. बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है. वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो. ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को. उस पर कोई जवाब तक नहीं आया. ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया. लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही. पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी. हो गया
जनाब जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग बार बार ये चुनाव पर आरोप लगाते हैं और आज चुनाव आयोग आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप करेंगे क्या आगे? जवाब तो दीजिए। अगर आपने मुझसे भी सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दें पहले। वो शेरशायरी करके चले जाते हैं, क्या जवाब होता है? पवन जी, आप कह रहे हैं सिर्फ ईवीएम पे हमारा नहीं है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि सारी चुनावी प्रक्रिया आखिर में जाके तो ईवीएम और उसके रिजल्ट पे ही टिक जाती है। तो 2018 में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। खड़गे जी ने कहा कि हम बैलेट पेपर की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। आज स्थिति क्या है? क्या आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान 100% मिलान से सहमत हैं या बैलेट पेपर पर वापसी चाहते हैं? Brother, basically that resolution, if you read the resolution, everything is in that. I read it. We are talking about a movement for free and fair election. In that everything will come. देखिए, अगर मूवमेंट की बात हो रही है तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों तक जाना, लोगों की बात सुनना, उनसे भी सुझाव लेना। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? लोगों से संवाद किया, संवाद करने के बाद मुद्दे मिले, उन मुद्दों को हमने लोकसभा के अपने मैनिफेस्टो में डाला, उसका रिजल्ट आपको दिखा। तो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जनमानस को भी तैयार करना, लोगों में आम सहमति बनाना, लोगों की सुनना, लोगों से अपना संवाद स्थापित करना इस मुद्दे पर बहुत आवश्यक है। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.